Hello students, a very good day to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleague from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease, and following the instruction as told by your parents and teachers, like washing hand and keeping the distance. Now we will resume our lesson of history, that is of Mesopotamia. We are done with the basic concept of meaning of the civilization, reasons for the development of River Valley civilization, discovery and location of Mesopotamian civilization, main features of Mesopotamian civilization, contribution of Mesopotamian civilization and decline of Mesopotamian civilization. इसमें हमने civilization का purpose, Bronze Age civilization settlement, then civilization की development near river valleys क्यों थी, उसके details like abundant water, fertile lands and means of transport. Then civilization की location, main features of civilization are already done by us. Now what we have to do today is the occupation. Now occupation of the Mesopotamian include agriculture, animal husbandry, art and craft. नाउ इन एग्रीकल्चर हमें ये पता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है इट वाज इन बिटवीन रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, जो कि बहुत फर्टाइल थे और इसी वजह से यहाँ पे हर तरह की जो क्रॉप है वो ग्रो होती थी, जिनमें कई तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस सभी ग्रो होते थे। मेसोपोटामियंस के बारे में ये माना जाता है उन्होंने सबसे पहले अनाज को उगाया था, ठीक है। एंड दे ऑल्सो बिल्ड डाइक्स टू कंट्रोल द फ्लडिंग रिवर्स। अब रिवर के एजेस पे या रिवर्स के जो हैं पास रहने की वजह से ड्यू टू हैवी रेन वहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम रहती थी, तो फ्लड से बचने के लिए उन्होंने डाइक्स की भी बिल्डिंग की ताकि वो फ्लड से बच सके। देन केम्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फिर उन्होंने बाद में एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट की, क्योंकि उसके साथ उनको फार्मिंग में, ट्रैवलिंग में और इरिगेशन में हर चीज़ में हेल्प मिलती थी। देन केम आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट उनकी डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके लिए टूल्स, डेकोरेटिव मटेरियल्स, यूटेंसिल्स सभी वो आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते थे। वी आर डन विद ये हम ट्रेड एंड कमर्स कर चुके हैं। रिलीजन एंड कल्चर इज़ ऑल्सो डन बाई अस। राइटिंग यूनिफॉर्म्स इज़ ऑल्सो डन बाई अस। Now science and mathematics is also done by us. Technological and invention of wheel. This is the concept that we have to discuss today as well. Although archaeologists are not sure about who invented the wheel, the oldest wheel known was discovered in Mesopotamia. हमें अभी तक ये नहीं पता है कि व्हील की एक्चुअली इन्वेंशन किसने की, पर ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया में खोज जो व्हील की हुई है वो सबसे पहले हुई, and it dates back to 3500 BCE, and it is likely Sumerians first used the wheel for making pottery in 3500 BCE, right? And in the end what we are left with the law and the decline of the civilization. Mesopotamians were the first to develop code of law. ये हम सभी को पता है, whenever we are living in social atmosphere and society, what we are to do, we have to build a proper law and order system. King Hammurabi of Babylon had compiled the rules and law of city and written them on a stone slab. बेबीलोन का जो किंग था हमुराबी,
उन्होंने सबसे पहले रूल्स एंड लॉ ऑफ सिटी को एक स्टोन की स्लैब में रिटन फॉर्मेट में इशू किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन हैड ब्रोकन अनदर मैन्स बोन, हिज बोन्स वुड बी ब्रोकन टू। उनका कंसेप्ट आई फॉर एन आई का था, यानी कि जिसने जो जुर्म किया है उसको वैसी ही सज़ा मिलती थी। जैसे कि अगर किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी की बोन तोड़ दी, उसकी भी बोन्स को तोड़ दिया जाता था। कोड ऑफ हम्मुराबी कंप्राइज 282 ऑफ सच लॉज कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम्मुराबी का यह जो स्टोन स्लैब था, उसमें जो उस वक्त सोसाइटी में 282 टाइप्स के क्राइम माने जाते थे, उनके लिए लॉज को जो लिखा गया था। Now in the end we came with the decline. Now how did they decline? There were certain reason कि उनकी जो civilization है वो ख़त्म हुई। तो उससे सबसे पहला रीज़न ये बना कि फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती थी ड्यू टू लिविंग नियर द रिवर, और उनके जो इरिगेशन के मेथड थे वो बिल्कुल सही नहीं थे, जिसकी वजह से लैंड जो है जिसको फर्टाइल माना जाता था उसमें सॉल्टी मिनरल्स जो है वो कंपोजिट होना शुरू हो गए, और जो लैंड है वो बैरन होनी शुरू हो गई, और क्रॉप्स जो है वो ईजीली होनी बंद हो गई, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो स्पेकुलेटेड दैट रिवर यूफ्रेट्स चेंज इट्स कोर्स एडवर्सली इफेक्टिंग मेसोपोटामियन पीपल। ये भी माना जाता है कि जो मेन रिवर थी यूफ्रेट्स, उसका भी जो रूट था वो टाइम के साथ उस सिविलाइजेशन से बहुत दूर होता चला गया। जब पानी लोगों के पहुंच से दूर होने लग गया तो लोग भी वहां से जाना शुरू हो गए। हिस्टोरियन ऑल्सो बिलीव दैट द वॉर्स वर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द कोलैप्स। द लास्ट सुमेरियन डायनेस्टी फेल इन 2000 BC. Now we have the question answers of this. First one is state reason of development of civilization near rivers. Civilization developed around river because the water provided place to hunt and fish. पानी की सप्लाई ज़्यादा होती थी तो वहाँ पे वो हंटिंग एंड फिशिंग कर सकते थे। जब रिवर्स में फ्लड आता था तो आसपास की लैंड भी वो फर्टाइल बना के जाता था। दिस अलाउड देम टू सपोर्ट फार्मिंग। डिस्कवर द टाउन प्लानिंग ऑफ मेसोपोटामिया। अभी मेसोपोटामिया में टाउन प्लानिंग कैसे होती थी? द मेसोपोटामियन सिटीज़ फॉलोड अ यूनिफॉर्म पैटर्न। पीपल रिजाइड इनसाइड द वॉल्ड सिटी। लोग चार दीवारी किए हुए टाउन में रहते थे एंड द आउटर टाउन एरियाज। हाउसेस जो थे वो कैसे बने होते थे? स्ट्रीट में दोनों साइड्स पे हाउसेस होते थे और हर एक हाउस में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड अटैच होता था और उसके चारों तरफ है जो रूम्स होते थे। व्हाट वर द रिलीजन बिलीफ ऑफ मेसोपोटामियंस? ठीक है, मेसोपोटामियन बिलीव दैट डिवाइन इफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेसोपोटामियन मानते थे कि ह्यूमन की लाइफ में हर एक लेवल पे भगवान का हाथ है। ईच मेसोपोटामियन हैड इट्स ओन पैटर्न गॉड और गॉडेस। हर एक मेसोपोटामियन का खुद का पैटर्न गॉड या गॉडेस होते थे। द पैटर्न गॉड हैड द लार्जेस्ट, जो उनका मेन गॉड होता था उसका जो टेम्पल है सिटी में सबसे बड़ा होता था और बाकी के गॉड्स के छोटे टेम्पल होते थे। नेचुरल फोर्सेस जैसे सन हो गया, रेन हो गया, मून हो गया या स्टार हो गया, उनकी भी पूजा होती थी। और किंग को है जो सबसे बड़ा प्रीस्ट माना जाता था। राइट नोट ऑन सिस्टम ऑफ राइटिंग, ये तो हम सभी को पता है कि यूनिफॉर्म सिस्टम जो दिया था हमें एंशिएंट सुमेरियन ने दिया था मेसोपोटामिया में 5500 से लेकर 3000 BC से पहले, ठीक है। और ये सबसे सिग्निफिकेंट है कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म्स की ही वजह से हमें रिटर्न में पता लगता है कि मेसोपोटामियंस लोगों का लाइफस्टाइल क्या था या उनकी लाइफ रेगुलेशंस क्या थी। और इन्हीं को उन्होंने द मेसोपोटामियंस यूज्ड वेट क्ले टैबलेट्स यूजिंग स्टाइलस इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। मेसोपोटामियंस ने वेट के स्लैब्स, क्ले के स्लैब्स यूज़ किए लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन राइटिंग में खुद के रिटन फॉर्मेट यूनिफॉर्म्स में क्रिएशन के लिए। हाउ डिड मेसोपोटामियन कंट्रीब्यूट टुवर्ड फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथ? अभी साइंस के लिए, हम मैथ्स के लिए हमें पता है कि उन्होंने सेक्सोडेसिमल सिस्टम की स्टार्टिंग की थी। वो 60 नंबर को सुप्रीम मानते थे। और दिस इज़ हाउ डिवीजन ऑफ टाइम इज़ बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ 60। ये हमें भी पता है कि तभी से डिवीजन ऑफ टाइम 60 से स्टार्ट हुआ। लाइक 1 minute is equal to 60 seconds and 60 minutes is equal to 1 hour, right? The Mesopotamian calendar comprises of 12 months. Mesopotamian calendar में 12 months
और डेज के 7 वीक थे। देयर वर आल्सो प्रोफिशिएंट इन एस्ट्रोनॉमी एंड वुड करेक्टली प्रेडिक्ट द एक्लिप्स। उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और वो प्रॉपरली इन एडवांस बता सकते थे कि कोई भी ग्रहण कब लगना है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।